रहमान कैंपस के अपनी तालियों में इनका वेलकम करें और इनकी हेल्प के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर फयाज का कि वो स्टेज पे आएँ और इनकी हेल्प करें। स्कूल के प्रिंसिपल कामरान साहब को खुशामदीद। अल यासीन कैंपस क्लास प्ले ग्रुप सेकंड पोजीशन गोज टू मरियम राशिद। मरियम राशिद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Yasin campus class play group second position goes to Muhammad Hashir. Al Yasin campus class play group second position goes to Asnat Ahmed. मरियम आशिर अपना अवार्ड वसूल करते हुए। अल यासीन कैंपस क्लास प्ले ग्रुप सेकंड पोजीशन गोज टू मोइजुल्लाह। मोइजुल्लाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अहमद अपना अवार्ड वसूल करते हुए। मोइजुल्लाह अपना अवार्ड वसूल करते हुए। अल यासीन कैंपस क्लास प्ले ग्रुप सेकंड पोजीशन गोज टू ज़ारा नूर। मोहम्मद हाशिर अपना अवार्ड वसूल करते हुए। अल यासीन कैंपस क्लास KG1 सेकंड पोजीशन गोज टू अब्दुल राफे। अब्दुल राफे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अपना रिजल्ट अवार्ड वसूल करते हुए। अल यासीन कैंपस क्लास KG1 सेकंड पोजीशन गोज टू मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Al Yasin campus class KG1 second position goes to Hure Jannat. Hure Jannat, please come on the stage. Al Yasin campus
Azan break. Come on the stage. Al Yasin campus, class KT1, second position goes to Arfa Afzal. Arfa Afzal, please come on the stage. आप लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब बारी है अल राफे कैंपस की। Al Rafa campus, class KG2, second position goes to Muzammil Fahim. Muzammil Fahim, please come on the stage. Al Rafa campus, class KG2, second position goes to Minahil Shakil. Minahil Shakil, please come on the stage. मुज़म्मिल फ़हीम अपना अवार्ड वसूल करते हुए। Al Rafa campus, class 1, second position goes to Aisha Sana Khatun. Aisha Sana Khatun, please come on the stage. Al Rafa campus, class 1, second position goes to Rida Noor. Al Rafa campus, second position goes to Daniel Victor from class 1. Daniel Victor, please come on the stage. Daniel Victor अपना अवार्ड वसूल करते हुए। Al Rafa campus, class 1, second position goes to Muhammad Talha. Al Rafa campus, class 1, second position goes to Muhammad Anas Afzal. Al Rafa campus, class 1, second position goes to Abira Ehsan. अबीरा एहसान, क्लास 2 अपना अवार्ड वसूल करते हुए। अल राफा कैंपस, क्लास 2, second position goes to Mirza Zohaib Asif. Mirza Zohaib Asif, please come on the stage. Al Rafa campus, class 2, second position goes to Muhammad Shakil. Muhammad Shakil, please come on the stage. Al Rafa campus, class 3, second position
goes to Mohammad Usman Asghar. मोहम्मद जोहेब आसिफ का अवार्ड वसूल करने के लिए उनके भाई Al-Rafid campus, class 4, second position goes to Javeria Hafiz. Al-Rafi campus, class 4, second position goes to Shayla Ahmed. By the music. Al-Rafid campus, class 6, second position goes to Ali Hamza. Al-Rafi campus, class 7, second position goes to Jasmine Malik. शैला अहमद अपना अवार्ड वसूल करते हुए Al-Rafid campus, class pre-9, second position goes to Wasif Ikhtiar. बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया। का साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर अहमद को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और इनकी मदद करें। Al-Rahman campus, class play group, second position goes to Ishal Meher. Ishal Meher, please come on the stage. इधर दे चेंज कर कट कर कट कर
Class 2, second position goes to Hanifa Bibi. हनीफा बीबी, please come on the stage. मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। कम से कम बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कंजूसी मत करें। Al-Rahman campus, class 3, second position goes to Umema Saqib. Mehma Saqib, please come on the stage. Al-Rahman campus, class 4, second position goes to Saira Bibi. Saira Bibi, please come on the stage. Saira Bibi, please come on the stage. Al-Rahman campus, class 6, second position goes to Saman Sajjad. Saman Sajjad, please come on the stage. Saman Sajjad अपना अवार्ड वसूल करते हुए सायरा बीबी अपना अवार्ड वसूल करते हुए सेकंड पोजीशन Al-Rahman campus class play group goes to Abdul Rahman. Abdul Rahman, please come on the stage. अगर अब्दुल रहमान के घर में से कोई भी आया है तो वो स्टेज पे आके उनका इनाम वसूल कर लें। सेकंड पोजीशन क्लास 1 Abdul Rafi campus goes to class Aisha Sana Hatun. अगर आयशा सना खातून के घर से कोई आया है तो उनका इनाम वसूल कर लें। मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हमारे नाम किए। बहुत शुक्रिया। और वो तालिब इल्म जो पोजीशन हासिल नहीं कर सके वो मायूस बिल्कुल भी ना हो, बल्कि अपनी मेहनत जारी रखें और नेक्स्ट ईयर ये मौका हासिल करने की कोशिश करें। ये एक फितरी अमल है कि किसी भी मुल्क में बसने वाले बाशिंदे अपने मुल्क, अपने वतन को माँ का दर्जा देते हैं और इसकी खातिर जान तक कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ अगर बात की जाए अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत की, तो हमारे अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत की खास वजह ये भी है कि ऐसी कोई नेमत नहीं जिससे कुदरत ने हमारे मुल्क, हमारी इस पाक धरती को ना नवाजा हो। यहाँ हम नाश्ती भी है, प्यार और मोहब्बत के सांस भी बचते हैं, सूफी बुजुर्गों की करामात भी। मेरे वतन की मट्टी बनी मेरी पहचान, मेरे वतन की मट्टी बनी मेरी पहचान, जहाँ रोशन चांद सितारे वो है मेरा पाकिस्तान। अब मैं दावा देना चाहूँगी अजान और उनके साथियों को कि वो आए और नदीम अब्बास के प्यारे से सॉन्ग बोले सारा पाकिस्तान पर अपनी परफॉर्मेंस दें। Big round of applause, please welcome Azan and his mates.
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमा अपने खून में शामिल, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सारे दामन पाकिस्तान, सारे दामन पाकिस्तान। मैं बताऊं मेरे इस मुल्क में क्या है? यहाँ का प्यार ढाला, यहाँ मुख्तार ढाला, यहाँ परी थी जैसे मेरी किरदार ढाला, यहाँ तहजीब ढाला, यहाँ इजहार ढाला, यहाँ शायर भी आला, यहाँ फनकार आला, हमारी फौज आला, है उनका वार आला, न पंगा लेना हमसे, यहाँ बम्बार आला। 100 लोगों की भारी अपना एक जवान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ससरेगा तमाम पाकिस्तान, ससरेगा तमाम पाकिस्तान। कैसे टकराएगा कोई यहाँ पर मर्द मोमिन है? यहाँ शहबाज कलंदर, यहाँ दाता का लंगर, यहाँ गुरु नानक जी है, यहाँ इमाम बरी है, यहाँ पर बुल्ले शाह है, यहाँ सुल्तान बहू है, यहाँ शासन से आए, यहाँ सच्चल साई है, यहाँ अब्दुल्ला गाजी, यहाँ वारिस शादी है, यहाँ मोहम्मद बख्श जी वाला पीर अमीर भी है, यहाँ आशिक नबी के, यहाँ आशिक अली के, यहाँ आशिक सहाबा, यहाँ आशिक हुसैनी, काली कमली की छाँव में, काली कमली की छाँव में रहेगा दोनों जहां, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। सर से गर 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 भाम भाम गा गा पा पा पाकिस्तान, सर से गर 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 भाम भाम गा गा पा पा पाकिस्तान। ये धरती इश्क की धरती है, यहाँ पर हीरा ढांचा, यहाँ महिवाल सोनी, यहाँ पर मिर्जा साहिबा, यहाँ पर सस्सी पुन्नू, यहाँ पर हम रहेगा, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ पर फूल खिलेंगे, खुशी से मिलके रहेंगे। ये धरती इश्क की धरती, ये धरती प्यार की धरती, यहाँ नफरत ना होगी, ये धरती आग रहेगी। मेरे
तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अब मैं दावत दूंगी जमात दहम के बिलाल शफीक को कि वो आकर नज़मिया गाना पेश करें। आटा आटा ता आटा हाय 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 आटा आटा ता आटा कभी कभी तो गैस से आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए, कभी कभी तो गैस से आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुकड़ खाइएगा। हाय 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 आटा 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 मैं समझा था तुम हो तो क्या और ढूंढूं, मेरी जिंदगी में खुराक ही तुम हो। तब्दीली नहीं है मेरे पास तो क्या, तब्दीली नहीं है मेरे पास तो क्या, ये मुझ पे करम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा है आटा भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। आटा 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 तेरा साथ कल तक मेरे हाथ में था, ये आटा चिमटता था हाथों में प्यारे। ये कीमतें जो इसकी बढ़ने लगी हैं, ये कीमतें जो इसकी बढ़ने लगी हैं, ये आटा मिलेगा सोने के भाड़े। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर ये आटा निकल जाइएगा। जीना है आटे के बिना, जीना है। पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। यहाँ मैं अपने स्कूल की बच्चियों को दावत दूंगी कि वह अपनी दुआ प्यारे बच्चे के ज़रिए झूठे धोखे की जैसी लानत से बचने के साथ साथ बड़ों का एहतराम और नेकियां करने की दावत दें। प्लीज़ वेलकम। आप सबकी भरपूर तालियों में।
सबसे पहले तमाम वालिदैन, मेहमान खुसूसी, बाकी मेहमान और बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। ये सर 450 चाहिए। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के नाम लिए और इस हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, लेकिन साथ साथ इंशाअल्लाह तालीम का ये सिलसिला जो कि 2008 से स्टार्ट किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 12वां जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंच रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कुछ गुजारिशात हैं, क्योंकि तालीम के हिसाब से एक हमेशा एक चीज़ कही जाती है, तालीम व तरबियत, लेकिन पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस में इसको ज़रा सा चेंज किया जाता है और हमारा एक मोटो है कि तरबियत व तालीम, और उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर बच्चे की अच्छी तरबियत होगी तो वो तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बन सकेगा। लेकिन अगर तालीम हम लोग हासिल कर लें, हमारी तरबियत में कमी रह जाए, तो उस तालीम का मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा है। एक तो इंतहाई माजरत के साथ इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मुझे टीचर्स की तरफ से भी ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, ओवरऑल हम लोग इसी एरिया से रहने वाले हैं, कि जो लोग बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, खुसूसन बॉयज़, वो लोग पिक्स ले रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि तालीम और तरबियत का मेन असूल यही चीज़ हमें सिखाती, क्या तालीम क्या सिखाती है? तरबियत। जबकि बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई कि अदारा ख़ज़ा की तरफ से वीडियो भी बनाई जा रही है, तस्वीर भी बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं उन बहनों से इंतहाई माजरत के साथ, उन भाइयों से इंतहाई माजरत के साथ ये गोशवार करना चाहूँगा कि आप लोग उसके अगेंस्ट चले। हमारी टीचर्स आपसे इंतहाई रिक्वेस्ट कर रही हैं, हमारे मेल हजरात आपसे इंतहाई माजरत के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स एजुकेशन के साथ साथ तरबियत पे जोर देता है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक दफा क्लास के अंदर 20 to 30 की स्ट्रेंथ थी, वहां पे चॉकलेट सब बच्चों को, गार्ड को कहा कि सब बच्चों को चॉकलेट दे दी जाए। तो उस टाइम बच्चों की एज 8 to 10 ईयर्स थी, किसी बच्चे की 11 ईयर्स थी, इस एज में बच्चे थे। उसमें तज्जिया ये किया गया कि कुछ बच्चे जो अपना, क्योंकि क्लास हो रही थी, काम हो रहा था, कुछ बच्चों ने फौरन से वो चॉकलेट्स उठाई, खा ली।
कुछ बच्चों ने स्लो क्योंकि उन्हें ये कहा गया था देते हुए कि चॉकलेट्स आपने एंड में खानी है जब आपका काम खत्म हो जाए। लेकिन इसमें मेन चीज क्या, बहुत बड़ी जो चीज जाहिर की गई वो है सब्र। जब ये मामला क्लियर हो गया, उसमें नाम लिख लिए गए। कुछ अरसा गुजरा तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो उनका कहना था कि आज इस वाक़े को 15 to 20 इयर्स गुजर गए। आज वो बच्चे जिन्होंने उस टाइम सब्र का मुजाहिरा नहीं किया था, वो बच्चे, कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है, कोई बच्चा रोड पे मजदूरी करते हुए नजर आ रहा है, कि कोई भी उनमें से ऑफिसर नहीं था। यानी कि कैटेगरीज करते करते लास्ट 10 बच्चे थे जिनकी चॉकलेट्स जो हैं वो क्लास एंड होने तक उनके पास मौजूद थी। तो वो 10 लोग बहुत अच्छे ओहदे पे पाए गए, बहुत अच्छे ऑफिसर पाए गए। जैसा कि आज हमारी इस महफिल में आप देख लें, हमारे चीफ गेस्ट मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे बहुत ही करीबी, मेरे वालिद साहब के छोटे भाई, मेरे अंकल तशरीफ रखते हैं। असद साहब साइंटिस्ट हैं, खुसूसन स्कूल्स के प्रिंसिपल, चेयरमैन, FBR से रिलेटेड, सर्वे ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, जहां तक मेरी निगाह जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबा हाय से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग इस महफिल में बैठे और उन्होंने खुसूसन सर वसीम को अपना कीमती टाइम दिया। और मैं इनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा एहतरामन शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने अपना टाइम दिया और इस महफिल को रौनक बख्शी। इसके बाद पोजीशंस की बात करूं तो पोजीशन में सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। इस इलाका में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कैंपस इस अगस्त से स्टार्ट लिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी उसे मिली। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास कई ऐसे वालिदैन आते हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हुए हैं, कि क्या कहते हैं कि सर ये बच्चा हम आपके पास छोड़ रहे हैं, 1 क्लास प्ले ग्रुप जो भी है, ये आपके पास इसलिए छोड़ रहे हैं, इसे क्लास की हाउ न हो तो हम बड़े अदारों में दाखिल करवाएं। मेरे साथ मेरे अदारे जैसे कुछ भाई मेरे बैठे हैं, प्रिंसिपल हज़रात, तो ये कि मैं आपके जरूर इल्म में रखूंगा कि बड़े स्कूल नाम से बड़ा होना और तालीम से बड़ा होना, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। आजकल हम लोग देखते क्या हैं, देखते ये हैं कि जहां पे फीस ज्यादा है वहां पे मेयार अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर क्लियर करूं कि आज हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज्यादा बच्चे पोजीशन ले रहे हैं और एक क्लास में इतना ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि हमारी जो पोजीशंस हैं वो नंबर्स में नहीं दी जा रही, हमारी पोजीशंस जो हैं वो परसेंटेज पे हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लास 2 के अंदर अगर पोजीशन सेकंड पोजीशन गई है
तो उसमें अगर 93 पे 3 to 4 बच्चे हैं तो सभी को सेकंड पोजीशन दी गई है, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डीप स्टडी उसे किया, लेकिन बच्चों की परसेंटेज सेम हो रही थी। तो अगर बच्चों ने इतनी मेहनत की है तो उन्हें अवार्ड भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मुझे हर साल एंड पे ये सुनने को मिलता है कि जहाँ पे आपके तलाकात हैं वहाँ पे पोजीशन दे दी जाती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज अपने ज़मीर के हिसाब से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड खड़ा हूँ कि जो हमने रिजल्ट दिया है वो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% एक्यूरेट दिया है। उसमें बिल्कुल किसी का 1 नंबर ना आगे है ना पीछे है। इसके साथ साथ पिछले साल से पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तरफ से कुरान पाक की क्लासेस का इनाकाद किया गया। जिस भी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है शुरू में काफ़ी मुश्किलात देखने को मिलती हैं। एक कारी हज़रात साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों को आप डेली की बेस पे आप कुरान पाक पढ़ाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जस्ट इन 3 ब्रांचेस में मेरे पास इस टाइम 6 कारी हज़रात काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की कामयाबियों के पीछे एक राज है, और वो राज है मेरे माँ बाप। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप की दुआएं लेके निकलते हैं, और अल्लाह ताला उन दुआओं के सदके इन बच्चों को भी कामयाब करता है। और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करना चाहूँ उतना कम है कि जिसने इतनी अजीम हस्तियाँ मुझे दी, और मैंने जिस भी स्टेज पे जाना चाहा उसमें उन्होंने मेरी हेल्प की, हुसूसन तालीम के मामले में, अदारा हज़ा के मामले में। कई ऐसे यहाँ पे वालिदैन बैठे हैं हुसूसन मेल हज़रात, कई ऐसे हुसूसन मेरे उस्ताद भी बैठे हैं मेरे सामने, जिन्होंने स्कूल के हवाले से मुझे 12 दफ़ा सजेशन दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन पे हम लोग अमल करते हुए आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि अदारा हज़ा में आप अपना बच्चा ज़रूर दाखिल करवाएं। मैं जो भी हमेशा ये चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि जो भी वालिदैन आता है मैं उसे ज़रूर ये कहता हूँ कि आप 7 to 8 अदारे जो हैं वो मस्ट विजिट करके आएँ। क्योंकि माज़रत के साथ ऐसा नहीं है, हर अदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ अदारे बीच में ऐसे हैं हमारे जो एक नाम पे बिजनेस बनाए बैठे हैं, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। अब अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को फर्स्ट पोजीशन नहीं मिला करती, ना ही सेकंड मिला करती है। लेकिन इसका सबसे जो इस पे डेप्थ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि बच्चे का नॉलेज। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये चीज़ कहूँगा कि हमारे तीनों कैंपस का अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बच्चा अगर जिसने आज क्लास 2 पास की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास 2 के काबिल है। ऐसा नहीं है कि उसे मार्क्स दे दिए गए। और हर साल हमारा अदारा में बच्चे फेल भी होते हैं, हालांकि प्राइवेट अदारा होने की मुनासबत से। लेकिन चीज़ क्या देखी जाती है, मेयार स्टैंडर्ड। जिस बच्चे को हक हासिल है कि वो अपनी क्लास में जा सके,
वो तालीम पे फोकस करता है, उसी बच्चे को प्रमोट किया जाता है, आगे भेजा जाता है, ना कि जस्ट एडमिशन बचाने के लिए ठीक है जी आप अगली क्लास में भेज दें। तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि न्यू क्लासेस का इजरा इंशाल्लाह 9 मार्च 2020 से होगा। और जितने भी वालिदैन बैठे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 मार्च 2020 को बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाएं, क्योंकि हर साल न्यू सेशन का आगाज कुरान पाक, दुआ और लंगर से किया जाता है कि अल्लाह ताला इसके सदके हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजारे और बच्चों के जहन कुशादा करे। और इसके बाद आज का खुसूसन फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। पहले तो मैं सर ने भी आगे कहा है कि लोड शेडिंग की वजह से हमारा फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, माजरत चाहूँगा। बाकी किसी भी हवाले से किसी भी वालिदैन को कोई बात खुसूसन पिक्चर्स के हवाले से, वीडियो के हवाले से बुरी लगी हो तो माजरत। लेकिन हम लोग तालीम और तरबियत पे काम करते हैं, क्योंकि तरबियत ज़रूरी है, तालीम बाद में ज़रूरी है। इसके साथ खुसूसन महंगाई का आलम आपके सामने है। आपको यहाँ ही क्लियर करना चाहूँ कि फीस में 200 का इजाफा किया गया है पर क्लास, और साथ आपको जो बुक्स हैं वो आबासी बुक शॉप से मिलेंगी। आप जस्ट वहाँ पे स्कूल का नाम, क्लास बता के बुक्स ले सकते हैं। और यूनिफॉर्म में किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं है। और 9 मार्च 2020 से आप लोग बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाएं, ताकि इस तालीमी साल का आगाज़ किया जाए और आप लोगों की काविशों से ही बच्चों के मुस्तकबिल में बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ तमाम वालिदैन, मेहमान, खुसूसन चीफ गेस्ट सर से मैं इजाज़त चाहूँगा। और वालिदैन से लास्ट में गुजारिश है कि आप लोग तहम्मुल से बैठें। बस हमारे लास्ट 1-2 आइटम रह गए हैं, तो उसके बाद आपको अल राफे कैंपस से रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन रिज़ल्ट लेते हुए खुसूसन आप लोग तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। और लास्ट पे मैं अपने फंक्शन के मोहतरम चीफ गेस्ट अंकल साजिद सदीकी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के सुप्रीम हेड मेरे बड़े भाई जनाब मोहतरम मोहम्मद अनीफ साहब, प्रिंसिपल पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, जुमला स्टाफ और इस हाल में मौजूद मर्द, ख़वातीन, बच्चे, पेरेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि आप बहुत देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए मैं खुद भी किसी और तकरीब में जाना है। मैं इंतहाई मुख्तसर 3-4 गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट, अहले इल्म व अदब, मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। आल दो मैं कोई
इल्म से मुतल्लिक़ कोई दानिशवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक अदना सा कारकुन और फ्रीडम फाइटर हूँ। और मेरा इस बात के ऊपर बिलीव है और ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाकर किसी बड़े अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। महज रवायती लोगों की तरह खाना पीना, पैसा कमाना और मर जाना मेरे नज़दीक कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरे नज़दीक यह है कि जिस मुल्क के अंदर आप पैदा हुए हैं, आप अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए कोई ऐसा काम करके जाएं कि तारीख आपको सुनहरी रूप से याद करे। और मैं यहाँ पर मौजूद आप सारे अब आपको ये बताता चलूं कि इस स्कूल ऑफ थॉट के पीछे जो मेरे बड़े भाई आपके सामने तशरीफ फरमा है, जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम बिल्कुल इंतहाई रिमोट और पसमानदा इलाके, बिल्कुल कंट्रोल लाइन बॉर्डर के ऊपर हम रहते हैं। और आज से 44-45 साल पहले जब वहां पर स्कूल नापैद थे, लिखे पढ़े लोग दस्तयाब नहीं थे, तो अपने गांव, अपने इलाके से बहुत दूर एक ऐसे इलाके में जाकर जहां पर आज भी गाड़ी और रोड का कोई कंसेप्ट और तस्वर नहीं है, वहां जाकर इन्होंने जो हमारी कौम की और उस वक्त के बच्चों की जो तालीम और तरबियत की, आप बिलीव कीजिए कि उस इलाके के लोग आज मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर, आज मुख्तलिफ पदों के ऊपर जब मिलते हैं और जब उनको तारीफ में करवाता हूँ कि मैं अनीस साहब का भाई हूँ, तो खड़े होकर अदब से मुझे सलाम पेश करते हैं कि आप उस अजीम इंसान के भाई। इस अंदाज में उन्होंने, और यकीन कीजिए इसलिए नहीं को मेरे भाई हैं, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि उन्होंने तालीम के शोबे में जो काम किया, जिस खलूस के साथ खालिसतन लोगों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करने की नीयत के साथ, आज भी वो लोग बार बार मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार उन्हें हमारे इलाके में ले आइए, हम उनका दीदार करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। ये वो शख्सियत आपके पास मौजूद है, ये आपके लिए और हम सब के लिए ये एजाज की बात है। मुझसे कबल प्रिंसिपल सर वसीम आपके सामने जो बात कहना चाह रहे थे और जो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, मैं हमेशा जिस भी तालीमी इदारे में जाता हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ टीचर अहबाब से यह गुजारिश करता हूँ कि आप इस कौम का मुस्तक़बिल हैं, आपके हाथ में कौम की तकदीर है, आप इस मुल्क और कौम को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये आपके इख्तियार में, अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया। और जिस तालीम के साथ उन्होंने तरबियत की बात की, मैं इसकी एक दो मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहता हूं, तो मस्जिद में एक हफ्ता पहले एक बुजुर्ग, बड़े बारिश, बड़े नेक बुजुर्ग मुझे मिले, मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है, गौर से सुनिएगा, 2-3 मिनट आपके लूंगा, ज़्यादा टाइम लूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे खास बात करनी है। मैंने कहा जी अंकल फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा फलां बेटा मुझसे बदतमीजी करता है। तो आप यकीन कीजिए, मस्जिद के अंदर खड़ा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अंकल वो तो बड़ा लिखा पड़ा है, उसने तो PhD की है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने पता है क्या कहा पंजाबी में, अपनी जुबान में? उन्होंने कहा सिद्दीकी साहब वो पढ़े आता है पर करे आदमी। ये बात थोड़ी, बुजुर्ग अनपढ़ थे, उन्होंने कहा वो पढ़े तो है पर करे नहीं। उसने इल्म तो हासिल किया है, लेकिन उसकी तरबियत ना मैंने की है, ना माशरे, ना उस्ताद इकराम ने। इसलिए मैं इस स्कूल की इंतजामिया को, इस पूरे ग्रुप को
दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनका मातो फर्स्ट ऑफ ऑल तरबियत और बाद में तालीम। ये बहुत मैं समझता हूँ कि आज माशरे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुझे इत्फाक होता है दुनिया के बहुत से लोगों से मिलने का। मैं छोटा मोटा सियासी कारकुन हूँ इस तहरीक आज़ादी कश्मीर का। आप बिलीव कीजिए, आज पूरी दुनिया के अंदर एक पाकिस्तान के बड़े नामवर दानिशवर इशफाक अहमद हैं, यहाँ बड़े आले दानिश बैठे हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है। मैं यूरोप में भी गया हूँ, मैं मिडिल ईस्ट भी गया हूँ, मैं बरसगीर के अंदर भी घूमा हूँ। बड़ी खूबसूरत बात लिख कर गए हैं, कहते हैं मुसलमान सारे बरसगीर के अंदर हैं, इस्लाम सारा यूरोप के अंदर। यानी इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, जहां तक मैं समझा हूं एक आम छोटा आदमी कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारी इंसानियत की बुनियादी एथिक्स और अखलाकियात है और तरबियत है। आप यकीन कीजिए, हमारा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ जो निसाब है, प्राइवेट स्कूल्स के आने से बड़ी तब्दीली आई है, वरना हमारे निसाब में आज भी बड़ी खामियां मौजूद हैं। मैं फिनलैंड में एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे 1-1.5 हफ्ता पहले यहाँ तशरीफ लाए, उनसे तालीम के मौजूद पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिनलैंड में पहले 3 साल, यानी जिसे हम प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप कहते हैं, कोई किताब बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, मां सिवाय एक किताब है जिसका नाम है एथिक्स, अखलाकियात। सिर्फ बच्चों को अखलाकियात सिखाई जाती है कि आपने वालिदैन के साथ कैसे रहना है, आपने बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, आपके पड़ोसी के क्या हकूक हैं, अहले मोहल्ला के क्या हकूक हैं, छोटे बड़े का क्या एहतराम है, मुल्क की क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, क्या फ़ायदे हैं आपके ऊपर। पहले 3 साल सिर्फ ये सिखाया जाता है। अब देख लीजिए ना, हमारे माशरे में रब्ता ये करें हम कि हम कहीं बाजार से गुजरे हों, आदमी हमारे साथ ऐसे लग जाए, हमारा क्या रवैया होता है, नजर नहीं आ रहा, वो देखते नहीं हो। आप चले जाए किसी यूरोप के किसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, मामूली सा हाथ चाह चलेगा, कहेगा सॉरी। आप किसी को पानी का गिलास पेश करेंगे, आप किसी को अखबार पेश करेंगे, आप किसी के लिए रास्ता छोड़ेंगे, वो कहेगा थैंक यू। छोटे छोटे अल्फाज, ये है वो तरबियत। और आज जो कौमें तरक्की की उन मनाजिल को तय करते हुए आखिरी हद तक पहुंची हैं, उसकी बुनियाद वो तरबियत है। इसलिए मैं एक मरतबा फिर सारी इंतजामिया को, आज जो यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे हुआ, आप बिलीव करें कि आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ जाता है, तकरीबन 4-4.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन एक दफ़ा भी यहाँ बैठे हुए बोरियत महसूस नहीं, बल्कि हर आने वाला फंक्शन ने हमें एक नया जो है वो जज्बा पैदा किया है और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं क्योंकि खुद तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक कारकुन हूँ, ना कोई बिजनेसमैन हूँ, ना कोई मसला मेरा, लेकिन मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि मैं इन स्टाफ के लिए, जुमला स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए 25,000 रुपये सिर्फ उनके खाने के लिए मैं अपनी तरफ से आज ऐलान करता हूँ। मैं दिल की अथाह गहराइयों से, कोई मेरा और मसला नहीं है, वरना मैं हमेशा बड़े भाइयों से पैसे लेता हूँ, मैं देता कोई नहीं उनसे, लेकिन चूंकि बच्चों ने जो आज पे यहाँ जो परफॉर्म किया है और स्टाफ ने जितनी मेहनत की है, आप यकीनन, एक मुझे अंदाजा है इस बात का कि आप फीसद भी बहुत कम लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये सर वसीम बात कर रहे थे, मेरे 2 बच्चे और मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि वो 4-5 क्लास से चले गए उसके OA लेवल के सनअप में, तो फिर एक ऐसे लेवल पे जब मैंने कोशिश की उनको 8th-9th में चेंज करने की, तो कंसेप्ट एजुकेशन में और इस एजुकेशन में बहुत सारा फ़र्क था। तो बच्चों ने कहा नहीं जी, अब हमारे लिए वो नामुमकिन है, अब हमें इसी में आगे जाने दें। लेकिन मैं 32,000 रुपया स्कॉलरशिप के बावजूद दोनों बच्चों की 32,000 रुपया माना फीस देता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मेरे ख्याल में, मुझे नहीं अंदाजा कि 2,000, 2,500, 3,000 से ज़्यादा को आपकी यहाँ पे फीस होगी। और इस फीस के अंदर जो आपको क्वालिटी एजुकेशन मुहैया की जा रही है, मैं उस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ पैराडाइज स्कूल के जुमला स्टाफ को। और इसी ये मैं कहता हूँ कि नीयत, कहते हैं इन्नमल अमाल बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है।
जब आपकी नीयत के अंदर आपका मकसद कारोबार नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, बल्कि नई नस्ल को वेल एजुकेट करना है, तो फिर राहें खोलता है अल्लाह तबारक व तआला भी आपके लिए। और ये उसी नीयत का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि ये एक स्कूल, 2 और आज 3 ब्रांचेज, मेरे ख्याल में IT की ब्रांच भी आज आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी तौर पर दुआ गो हूँ कि जिस नेक मिशन और मकसद को लेकर ये सारा जुमला इंतजामिया इस पैराडाइज स्कूल ऑफ कॉलेजेस की आप सारे लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अपनी इस महकूम मजबूर कौम के लिए मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए। आज तो मैं कश्मीरी हूँ, मेरी बड़ी हमदर्दियाँ हैं इस मुल्क के साथ कि 72 सालों में जो इस मुल्क के साथ हुआ, आज भी जिस मिशन और मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, खुदादाद पाकिस्तान, मेरे नज़दीक आज जो मकासद हासिल नहीं हो सके, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी नस्ल को एजुकेट करना है और इस नस्ल ने आगे इस मुल्क की बागडोर संभाली है। उसके साथ साथ मैं एक तहरीक का कारकुन होने की हैसियत से आपसे गुजारिश करूँगा, यहाँ पे आपने जो कश्मीर को याद रखा अपने स्कूल के फंक्शन के अंदर, 3-4 आपने बहुत अच्छे यहाँ पे रोल अदा किए, उस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन आपसे ये दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि आज हम सारे लोग तो यहाँ बड़े इत्मीनान और आराम के साथ बैठे हैं। मेरा राब्ता है मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत से अपने दोस्तों से, और मुझे ये एजाज़ भी रहा है कि मैं प्रैक्टिकली मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिकली जिहाद में और जंग में शामिल रहा हूँ। मैं आपको ये बरादराना छोटा भाई होने की हैसियत से, यहाँ मेरे बुजुर्ग भी और बड़े भाई और मेरी माएँ बहनें और बेटियाँ बैठी हैं, आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर और हम कुछ नहीं कर सकते, पिछले 7 माह से जिन हालात में मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश फासिस्ट मोदी ने 80 लाख लोगों को दुनिया की जहन्नम और जेल के अंदर तब्दील करके रखा है। आज वहाँ कोई बच्चा पिछले 7 माह से स्कूल जाने नहीं जा सकता। आज वहाँ पे सूरत हाल ये है कि मासूम बच्चे दूध ना होने की वजह से माओ की गोद में तड़प तड़प कर उन्हें अपनी जानें दे दी हैं और उनको दफनाने वाला कोई नहीं है। माओ ने बच्चों को अपने घर के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया। ये सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर की। आज वहाँ मेरा भाई अपनी जवान बहन को घर के अंदर ऊंची बात नहीं करने देता, इसलिए कि उस चारदीवारी के बाहर एक दिन फौजी खड़ा हो और वो कहता है कि बहना ऊंची आवाज में बात ना करना, तुम्हारी आवाज सुन के वो बेगैरत फौजी कहीं मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए, तुम्हारी इज्जत के साथ ना खेले। आज ये सोचते कोई बहन आज अपने भाई को घर से बाहर इसलिए नहीं जाना देती कि भैया घर से बाहर ना जाना, शाम को तुम्हारा लाशा उसमें करना। ऐसी सूरत हाल में मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, छोड़िए बहसीत पाकिस्तानी कौम की अनकंडीशनल लव है कश्मीरियों के साथ, बहुत बड़ा रोल अदा किया है पाकिस्तानी कौम ने कश्मीरियों के साथ। लेकिन आज जिस हाल में कश्मीरी कौम है, मैं बड़े दर्दमंदाना दिल के साथ, दुखी दिल के साथ आपसे ये कहता हूँ कि आज कश्मीर की आवाम की नजरें और उम्मीद की आखिरी किरण आप पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के लोग वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद 1 लाख लोग मुद्दा तहरीक में शहीद हुए। कोई घर कश्मीर का ऐसा नहीं है जहां से लाशा नहीं होती, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे शोधा के कब्रिस्तान आबाद नहीं है। मैं वहां रहकर अपने आंखों से देख कर आया हूँ। खुदा ना खास्ता आज ये तहरीक नाकाम हो गई तो फिर याद रखिए पाकिस्तान भी महफूज नहीं है। जो इंटरनेशनल साम्राज्य है उसका एजेंडा बड़ा मुख्तलिफ है, वो सिर्फ कश्मीर नहीं है, उनके अज़ाम कुछ और हैं। इसलिए हमें सबको मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हिंदुस्तान के और मोदी के फाशिस्ट मोदी के नज़ाम को नाकाम बनाने के लिए हम सब ने अपना रोल अदा करना है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम जुमला स्टाफ को, इस इदारे के प्रिंसिपल को, उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए, जिन बच्चों ने पोजीशनें ली हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो टीचर और पेरेंट्स हैं, ये दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप कम्बिनेशन बनाएं, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से उस्ताद और स्कूल के साथ एक निज़ाम बनाएं, आना जाना रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की क्या पोजीशन है, इसलिए कि बच्चा 6 या 8 घंटे तो स्कूल में रहता है, बाकी वो 18 घंटे आपके पास होता है। इसलिए आपने देखना है कि बच्चे की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसने होमवर्क किया है, उसने अपने स्कूल का काम किया है, वो क्या कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक वालिदैन, हम यूं तो सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, दिन हम उस तरह का अपना टाइम नहीं निकाल पाते, बच्चों को टाइम नहीं देते। वालिदैन से ये गुजारिश जरूर करूँगा कि वो इस मामले में बिल्कुल भी सुस्ती का मुजाहरा ना करें, वो इस अच्छे इदारे के साथ ताउन करें, टीचर के साथ ताउन करें, ताकि मिलजुल कर हम एक नई और खूबसूरत नस्ल को परवान चलाएं, ताकि जिस मिशन और मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था उसको हासिल करें और हम दुनिया के ऊपर एक बावकार और गैरतमंद कौम की हैसियत से जिंदा रह सकें। मैं एक बार फिर आप का शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम इनाम लेने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हुए, और जो बच्चे इनाम नहीं ले सके उनको भी हौसला अफजाई मुबारकबाद पेश करते हुए कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में, लेकिन किसी एक को मैन ऑफ द मैच मिलता है, खेलना पूरी टीम नहीं होता है। आप सब जो बच्चे हैं स्कूल के 2, 3, 4 ने पोजीशन लेनी होती हैं, लेकिन जो परसेंटेज के हिसाब से जिस तरह बात की प्रिंसिपल साहब ने, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आजकल चूँकि पूरी दुनिया के ऊपर यही सिलसिला चल रहा है कि बेसिकली जो है बच्चों की परसेंटेज देखनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 60% से ऊपर जितने बच्चे गए हैं वो सारे लायक और ज़हीन हैं, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि जिन बच्चों ने पोजीशनें नहीं ली हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले साल वो इसको कम्पीट करेंगे और अगले साल इंशाअल्लाह ताला वो पोजीशन लेने में कामयाब होंगे। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगी सर नबील और सर नफीस को कि वो फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करें। साहब को और उनका साथ देने के लिए गुजारिश करूंगा मिस्टर अली मुराद, जो कि इंचार्ज हैं पेंशन सेल सर्वे पाकिस्तान के, और उनके साथ हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा सर वसीम को कि वो स्टेज पे आएँ और फर्स्ट पोजीशन के इनामात बच्चों में तकसीम करें। हर साल कुछ अवार्ड जाते हैं, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट अटेंडेंस, और इसके बाद तीसरा अवार्ड जाता है चौथा बेस्ट आर्ट वर्क। तो वो भी प्लीज़ उसके लिए भी आप लोग बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना टाइम देंगे ताकि इसका इख्तिताम अच्छे से अच्छा किया जा सके। ये हमारी लास्ट पोजीशन है, इसके बाद नेशन एंथम होना है तो वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप लोग भरपूर मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे ताकि हम लोग बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई कर सकें। आप लोगों की तालियां बताएंगे कि फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट करें या नहीं। तो स्टार्ट है अल यासीन कैंपस से। अल यासीन कैंपस क्लास प्ले ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन गोज टू हयाम फैसल। हयाम फैसल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Yasin campus class play group, first position goes to Muqaddas.
श्याम फैसल अपना अवार्ड वसूल करते हुए। मुकद्दस विक्टर फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप फर्स्ट पोजीशन। Al Yasin campus play group first position goes to Mohammad Hamza. Al Yasin campus class play group first position goes to Shamse. Shanze, please come on the stage. Al Yasin campus class play group first position goes to Masumai Iman. Masumai Iman, please come on the stage. Al Yasin campus class KG1 first position goes to Manahil Asghar. Manahil Asghar, please come on the stage. मासूमा ईमान अपना अवार्ड वसूल करते हुए। वसीम की बेटी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, किसी को खुद से नंबर नहीं दिए जाते। पेपर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अल यासीन कैंपस क्लास KG1 फर्स्ट अवार्ड गोज टू ईजा जहीर। Class KG1 first position goes to Muhammad Ehsanullah. अब बारी है अल राफे कैंपस की। अल राफे कैंपस क्लास KG2 फर्स्ट पोजीशन गोज टू कबीर नियाजी। Kabir Niazi, please come on stage. हो जानी चाहिए फिर तालियां। Al Rafe campus class KG2 first position goes to Rumaisa. Rumaisa, please come on the stage. Al Rafe campus class 1 first position goes to Shaikh Hassan. Shaikh Hassan, please come on the stage. Al Rafe campus class 1 first position goes to Usaid Raza.
on the stage. Al Rafe campus, class 2, first position goes to Huran Ehsan. Huran Ehsan, please come on the stage. Al Rafe campus, class 2, first position goes to Mariam Victor. Al Rafe campus, class 3, first position goes to Noor-e Haram. Noor-e Haram, please come on the stage. Class 4, Al Rafe campus, first position goes to Aisha Nadeem. Aisha Nadeem, please come on the stage. Al Rafe campus, class 6, first position goes to Aisha Minahil. Al Rafe campus, class 7, first position goes to Abdullah Javed. Al Rafe campus, class 7, first position goes to Fatima Rafiq. Al Rafe campus, class pre-9, first position goes to Ariba Fatima. Ariba Fatima, please come on the stage. बारी है अल रहमान कैंपस की. Al Rahman campus, class play group, first position goes to Farida Khan. अल रहमान कैंपस के अवार्ड तकसीम करने के लिए मैं सर हनीफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और बच्चों में अवार्ड तकसीम करें. प्रिंसिपल ऑफ अल रहमान कैंपस. Class play group, first position goes to Talha Hafiz. Al Rahman campus, class KG1, first position goes to Atif Aslam. Al Rahman campus, class KG2, first position goes to Falak Fatima. Wajani Jalil Pure, Al Rahman campus, class 1, first position goes to Muhammad Umair Khan.
position goes to Salwa Sarfaraz. Salwa Sarfaraz, please come on the stage. Command Campus Class 3 first position goes to Umme Habiba. Al-Rahman Campus Class 4 first position goes to Unur Fatima. Al-Rahman Campus Class 6 first position goes to Fiza Tabassum. Enjoy the music. Aruj Fatma, please come on the stage. से 10th तक के सेपरेट सेक्शन बनाए हैं जिनमें फर्स्ट प्री सेक्शन मींस मॉन्टेसरी एंड सेक्शन पीजी प्लस KG1 KG2 नेक्स्ट प्राइमरी सेक्शन मिडिल एंड हाई सेक्शन Al-Yasin Campus Montessori section Best Attendance Award goes to Muhammad Ahmad from class KG1. Muhammad Ahmad, please come on the stage. Muhammad Ahmad. Al-Yasin Campus Class KG2 Best Discipline Award goes to Iman Fatima. Iman Fatima, please come on the stage. Al-Yasin Campus Montessori section Best Student of the Year Award goes to Mariam Rashid from class 10. Mariam Rashid, please come on the stage. Class 7 Best Art Work Award goes to Mariam Nazir. Al-Rafi Campus Senior Section Best Attendance Award goes to Muhammad Madin Khan. मरियम नजीर अपना बेस्ट ऑड वर्क का अवार्ड वसूल करते हुए Discipline Award goes to आयशा मनाहिर. Al-Rafi Campus Senior Section Best Student of the Year Award goes to Nakeem Ashraf. Every road could be a
Class 1 Best Attendance Award goes to Discipline Award goes to Sharmeen Malik. Al-Rafi Campus Class 5 Best Student of the Year Award goes to Maria Nadeem. हाँ मेरे को ले बस होना एंडी है Azimwan Campus. Best Attendance Award from Montessori section goes to Seher. Seher, please come on the stage. Azimwan Campus Best Discipline Award goes to Muhammad Samiullah. Al-Rahman Campus Best Student of the Year Award goes to Haider Ali Zahid. Twerk it round and round. I'm ass hypnotized. Please come on the stage. Shake it side to side. Al-Rahman Campus Best Attendance Award from Senior Section goes to Mubashira. Mubashira, please come on the stage. Al-Rahman Campus Best Discipline Award goes to Abbas Ali. Al-Rahman Campus Best Student of the Year Award from Junior Section goes to Adil Mukhtar. मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ गेस्ट साजिद सदीकी साहब का और उनके साथ मिस्टर अली मुराद साहब का कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं आपको शुक्रिया अदा करने। तहम्मुल से आप लोग बैठेंगे, इसके बाद कौमी तराना होगा, तो इसके बाद आप लोग दूसरे कैंपस या राफे कैंपस से इसके बाद आप लोग राफे कैंपस से रिजल्ट ले पाएंगे। निकाला कर रहे हैं तमाम जितने भी हमारे स्कूल के 6 से 10 क्लास तक बॉयज़ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग यहाँ पे ही रुकेंगे और एंड पे मैं बड़े मौदबाना गुजारिश करूँगा कि जो हमारे मेहमान बाहर से आए हुए हैं तो उनके लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रिफ्रेशमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।
और मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाऊंगा ने। हाँ पहुंच जाऊंगा पर 4 साढ़े 4 बजे। हाँ ना तुम दसिया तो है ना जी। हाँ कह रही है ना जी लिखा है ना मैं 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंचाऊंगा जी। पहुंच जाऊंगा जी। नहीं जमशद है क्लास प्ले ग्रुप अली यासीन कोई कैंपस मसला नहीं मैं पहुंच जाऊंगा सर मैं हुरैन फातिमा हाँ जी सेकंड पोजीशन हाँ के लिए आएंगी और आपसे भरपूर नहीं नहीं लारा नहीं तुम क्या पहुंच जाऊंगा आप लोग कोशिश करेंगे कि भरपूर क्लैपिंग में उनकी हौसला अफजाई करें क्योंकि बच्चे की गलती से ओके वो हमसे शील नहीं बन सकी तो इंशाल्लाह बाद में और इसके साथ साथ मैं अपने खुसूसन रहमान कैंपस अल यासीन कैंपस और अनाफे कैंपस जितना भी हमारा स्टाफ है उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाया और वालिदैन के लिए महफूज बनाया। हाथ से वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को अजीम व शान बनाने के लिए रौनक बख्शी। आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ज़बरदस्त आइटम तैयार किया है। अब इन नन्हे मुन्ने सितारों को दावत दी जाती है कि वो स्टेज पर आएँ और थैंक्स करें। Great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 3, 4. 2 little words, 2